Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, we are going to discuss the important concepts related to stack data structure. Now, before starting this video, let me inform you, this video series is very helpful for the student, those who are the student for the computer science or information technology school student, as well as if they are the student of BCA, BSc IT, BTech, then also this video series are very important because I'm not making this video as per the school, but yes, these videos are very helpful to learn any type of concepts which belongs to computer science and information technology. And one by one, I will cover all the important topics. And this video is especially designed for the CBSE class 12th because the notes that I'm giving you, so this is basically from the NCERT official website. So you can also download these notes from the official website, and the official website link I will be giving in this video description box. So let's get started. Okay, now the stack data structure. First, you are supposed to learn the topic stack. Now, what we understand by the term stack? Now, see, stack का एक simple सा meaning है, जब आप एक के ऊपर एक कई सारे books रखते हो, so that is a piles of book, or we can say a piles of plates that we are keeping in any of the ceremony. तो एक के ऊपर एक हमने इस तरीके से रखा, so this is known as a stack. And ये एक तरीके का गेम भी है जो अगर आपने अपने बचपन में देखा होगा, so this is known as the problem, that is Tower of Hanoi problem. ओके, तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना है कि क्यों स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी. What are the important topics that is usually asked in this data structure? And the content that we are going to cover in this video is introduction, stack, what are the various operation of stack, implementation of stack using Python. Why Python? Because in the CBSE, you know कि Python is the programming language that is asked in your examination. और अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, देन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हमें समझना है कि हाउ टू इवेलुएट अ गिवन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, एज वेल एज किस तरीके से आप एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे और इसको किस तरीके से इवेलुएट करेंगे. ऑलमोस्ट अगर इस डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, सो ऑलमोस्ट यू विल बी गेटिंग 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैक और क्यू. तो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट role play in getting a good marks in the board examination. So yes, let us understand what is the introduction of stack data structure. तो अगर आप stack data structure की बात करेंगे, see, we have learned about different data type in the Python for handling values in class 11th. So this is part 2, class 12th. Class 11th में we have learned some of the concept related to data type. And what are the data type that might you have learned? String, list, set, tuple, and so on. Okay, these all are the sequence of data type that can be used to represent collection of element either of the same time or different type. Now, what is the meaning of same type or different type? If I say data type, so data type means the type of data that we are supposed to use. As for example, if I am creating a video right now, तो ये एक PDF file है. The extension will be .pdf. Similarly, if you are making a PowerPoint presentation, the extension will be PPTX. So these are the type of file. जैसे अगर आप Facebook पे अपना एक image upload कर रहे हैं या फिर आप Instagram पे एक video बना रहे हैं, reel बना रहे हैं, so they all are the different types of data that we are using. So when I say programming language, in the programming language, when we say a number which is in between 1 to infinity, or a number which is in the form of 2.5, a number which is in the form of a plus bi, so these all are the different types of number. ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि ये एक स्टैक है, इस स्टैक में मैंने कुछ 10 नंबर्स स्टोर किया है लाइक दिस, सो नाउ यू कैन सी दिस इज अ स्टैक ऑफ 5 नंबर्स और एक ही तरीके का नंबर है, दैट इज इंटीजर. सो दिस ऑल आर द इंटीजर नंबर सिस्टम. तो ये कैसा इंटीजर है? तो यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन में यही बताया जा रहा है कि आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, तो डेटा टाइप में कई तरीके के वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं. आइदर दे आर बी हैविंग ऑफ सेम टाइप और दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. डिफरेंट टाइप का ये नंबर है, मतलब है कि जैसे अगर मैंने ये स्टोर किया, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 101, जिसका नेम है, लेट्स टेक माय नेम एज अ रश्मि, मेरा एज लेट अस टेक एन एग्जांपल 35 है, मेरा कुछ एड्रेस है जैसे मुंबई. ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये जो डेटा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर विच इज ऑल्सो नोन एज इंटीजर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस. सो दिस इज माई नेम, so this is a data type of string. Similarly, this
दिस इज ऑफ इंटीजर बिकॉज ये 35 इज ऑल्सो अ नंबर। और अगर ये मैंने बोला दिस इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर किया है m। सो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर जिसमें मैंने अलग अलग तरीके के वैल्यूज स्टोर किए हैं। और ये एक स्ट्रक्चर 1 है जिसमें मैंने सेम टाइप का वैल्यू स्टोर किया है। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम डेटा टाइप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो आपने जो पढ़ा है सेट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है डेटा टाइप का, जिसमें आप सेम टाइप के एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को भी स्टोर कर सकते हैं। नाउ multiple data elements are grouped in a particular way for faster accessibility and efficient storage of data। अब आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि why we are requiring to store a lots of data elements into a single structure। मैं एक को एक डब्बे में रखूंगी, दूसरे को 2 डब्बे में रखूंगी, से लाइक सो ऑन। बट आपको पता है ना कि जैसे आपने बोला कि इस बॉक्स में मैंने एक डेटा रखा, इसमें दूसरा रखा, तीसरा रखा, सीक्वेंस में डेटा रखा, ठीक है। हो सकता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है। तो अगर आप सीक्वेंस में रख रहे हो तो वहां से डेटा को एक्सेस करना समहाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इन सारे डेटा एलिमेंट्स को एक तरीके से ग्रुप कर दें? सो वी आर सपोज टू ग्रुप अ डेटा। जैसे आप मार्केट से जाते हो, सामान उठाकर लाते हो, तो एज अ होल आप कई सारे सामान लेकर आते हो, बट जब घर में लेकर आएंगे तो आप एक स्टोर रूम में, अगर आपने किचन का सामान रखा है तो किचन में रखेंगे, इफ यू हैव सम स्टेशनरी तो स्टेशनरी की जगह पे रखेंगे, इफ यू हैव सम क्लोथ्स तो क्लोथ्स की जगह पर रखेंगे। सो वी आर अरेंजिंग दैट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन अ सेपरेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। So that is why it is very important for us to group our data in a particular way so that the accessibility and the efficient storage of data should be done. That is why we have to use different data types for Python for storing data values. Such grouping is refers to as data structure. Now, if you want to get into any type of IT industry, then आपका जो सबसे important interview question बनता है वो data structure से बनता है। वो आपसे डेफिनेशन ही पूछेंगे बिकॉज उनको पता है कि आप कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, आपने बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, बट दे आर एबल टू सी कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग इन दैट टर्म्स ऑफ द अचीवमेंट दैट यू हैव गेट इनटू अ सर्टिफिकेट। तो डेटा स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है कि डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना सो दैट कि व्हेन यू वांट टू एक्सेस सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट डेटा, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू। जैसे आप पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप क्या करते हैं, अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, है ना। क्यों हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं? बिकॉज एग्जाम के 2 दिन पहले आप पूरा नोटबुक तो नहीं पढ़ सकते हैं। सो यू मस्ट बी हैविंग योर चीट नोट, जिसको हम बोलते हैं चीट नोट्स, है ना। ऑल दो वो चीट नोट्स लेके एग्जाम में नहीं जाना है, बट आपको प्रिपरेशन करने के लिए वो चीट नोट्स अपने पास बनाना है। So this is how it is very important for us to organize a data into a particular structure, and that concept is known as data structure. Now, a data structure defines a mechanism to store, organize, access data along with the operations that can be efficiently performed on the data. So this is basically the definition of data structure. तो जरूर इसको ध्यान में रखिएगा because एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। For example, string is a data structure containing a sequence of elements where each element is a कैरेक्टर। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करें, अगर अभी मैंने अपना नाम स्टोर किया, सो माय नेम मस्ट बी स्टोर्ड लाइक दिस, है ना। इस तरीके का एक एक कैरेक्टर स्टोर होता है वन ब्लॉक ऑफ मेमोरी में। सो इट इज अ कंटिन्यूअस स्टोरेज ऑफ एलिमेंट। ऑन द अदर हैंड, लिस्ट इज द सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच एलिमेंट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप। तो अब यहाँ पे आप समझो, एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे, जो कि आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप का एलिमेंट स्टोर करेगा, दैट इज वेयर ईच एलिमेंट इज ऑफ कैरेक्टर, सेम टाइप का एलिमेंट है। बट अगर आपको कुछ ऐसा डेटा स्टोर करना है जिसमें नंबर भी है, आपका नाम भी है और आपका एज भी है, आपकी सैलरी भी है, तो ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर है। फॉर दैट यू आर सपोज टू यूज लिस्ट विच इज हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बना आपका, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, so what is the basic difference between your string versus list? ये एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। So this is one question जो first introduction में आपको मिला। Now we can apply different operations like reversal, slicing, counting of element, etc. on the list and string। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कई सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है।
लाइक आपका अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग में से एक एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना, उसको रिवर्स करना, जैसे आपने लिखा ABC, सो इसको एक्सट्रैक्ट करना CBA, सो दिस इज रिवर्सिंग ऑफ ए स्ट्रिंग। स्लाइसिंग का मतलब है अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहते हो, which is also related to the range, finding out the list of values. Hence, a data structure organizes multiple elements in a way so that certain operations on each element as well as collective data unit could be performed easily. तो आप डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज आपको एक ही स्ट्रक्चर में कई सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर करना है फॉर द क्विक एक्सेस एंड फॉर द क्विक रिट्रीवल ऑफ द information, and that is why there are lots of different types of data structure that you are supposed to learn. So this was a basic introduction of what is data structure and what you have learned in the previous classes. तो जो आपके 12th की अगर हम बात करें तो आपको एक पढ़ना है stack और दूसरा आपको पढ़ना है queue. When I say stack and queue data structure, these are the two important popular data structure used in programming. Although not directly available in Python, it is important to learn this concept as they are extensively used in the number of programming languages. And in this chapter, we are going to study the implementation using the Python. So basically, if I say कि data structure में आपका array आपको पढ़ना है, linked list पढ़ना है, binary tree, heap, graph, sparse matrix, इतने different types के data structure होते हैं. तो अगर कोई बीटेक का स्टूडेंट है या फिर किसी भी डिग्री कॉलेज का या फिर आप BCA, BSc, IT के स्टूडेंट हैं, तो आपके करिकुलम में ये सारे डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है. 12th क्लास की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ स्टैक और क्यू को पढ़ना है. तो आने वाले वीडियोस में आपको मैं डिटेल में इस सारे टॉपिक्स को समझाऊंगी. आज इस स्मॉल से वीडियो में हमने क्या कवर किया? द फर्स्ट वीडियो दैट वी हैव कवर्ड इज व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू कवर. अब अगर आप 12th के स्टूडेंट है, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है जिसमें आपको जितनी भी आपने डेटा टाइप पढ़े, लाइक स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है और सेट, तो इन सब का आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाना चाहिए. और साथ में आपको यहाँ पे स्टैक भी लिख लेना है, क्यू भी लिख लेना है, और सबके एक एक दो लाइन में आपको प्रॉपर्टीज लिखना है. बिकॉज ये देखा गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में व्हेन दे विल आस्क यू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो एक डेफिनेशन दे देंगे और आपको वहां पे फाइंड आउट करना है कि दिस डेफिनेशन इज फॉर लिस्ट, tuple, set, stack or queue. So if you like this video, please share this video with your friends and please do subscribe to our YouTube channel for the upcoming video. In the upcoming video, we are going to start with the first topic, that is the stack data structure. Thank you everyone for watching this. Please share this video with your friends as well. Thank you.